Assalamu alaikum, dear students. We are doing with the chemical reactions of the aldehyde and ketones, in which we have started with the nucleophilic substitution, nucleophilic addition reaction. First we have seen, and then we have seen the reduction reactions. Today we are going to start with the oxidation. Okay, oxidation. So dear student, aldehydes are easily oxidized to the carboxylic acid. Okay, common oxidizing agent, that is nitric acid, KMnO4 potassium permanganate, and K2Cr2O4, that is your potassium dichromate. Mild oxidizing agent, that is Tollens reagent and Fehling reagent. Tollens reagent क्या होता है? Silver ammonical nitrate. That is particular formula you have to remember, because many a times it is asked in the exam also. Okay, aldehydes are converted to the carboxylic acids by the oxidizing agent. Now dear students, just see to it, आपका जो एल्डिहाइड है उसको जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट टू इट, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर. नाउ डियर स्टूडेंट, आपको एक चीज रिमेंबर रखनी है, एल्डिहाइड्स मैंने पहले भी बताया था ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव. सो एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज, बट कीटोन रिक्वायर्स vigorous reagent and at the elevated temperature. C bond break to give the mixture of carboxylic acid having the lesser number of the carbon atom than the parent carbon. Dear student, this is called the Popov rule. ये आपकी टेक्स्ट बुक में given नहीं है. The ketone gets oxidized in such a manner that the keto group remains with the smaller group. तो आपको एग्जाम्पल given है कि कार्बोनिल के एक साइड पे CH2 है, एक साइड पे CH3 है, तो कार्बोनिल किसके साथ रहेगा? आपका जो छोटा वाला कार्बन का चेन है उसके साथ रहेगा. एंड नो डाउट द अदर ग्रुप विल बी ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. So you have to remember this particular, that how it is going to convert and how you are going to gain the carboxylic acids. Next, dear student, you have to remember that this particular conversion, आप जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे वो याद रखना है. नेक्स्ट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट इज यूज टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स ओनली. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए यूज करना है? आपका जो एल्डिहाइड है उसके लिए, कीटोन्स के लिए नहीं. इट इज यूज इन द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डो एंड कीटो ग्रुप्स. अगर एल्डोज एंड कीटोज को डिटरमाइन करना है तो आप क्या करेंगे? आप जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो यूज करेंगे. उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है. अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो एल्डिहाइड है, और अगर नहीं हुआ तो कीटोन है. इज इट क्लियर? सो टॉलरेंस रिएजेंसी फॉर्मूला इज गिवन AgNH3 twice, then bracket over plus NOH minus, which is called silver ammonical nitrate. It is many a times asked in the practical exam also that what is Tollens reagent. तो आपको ये पता होना चाहिए, Tollens reagent is ammonical silver nitrate and it gives the mirror test, silver mirror test. We are going to perform it, don't worry. So this is particularly for your aldehyde. जब आपको मैं functional group करवाऊंगी practicals में तो मैं आपको बताऊंगी कि एल्डिहाइड्स के लिए मिरर टेस्ट क्या होता है. बट जस्ट नाउ यू हैव टू रिमेंबर विद द रिएजेंट, एंड योर रिएजेंट इज टॉलरेंस रिएजेंट. इज इट ओके डियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आपका जो एल्डिहाइड है वो सिल्वर एमोनिकल नाइट्रेट के साथ रिएक्शन देकर क्या बनाएगा. तो रिमेंबर, आपका जो OH बताया हुआ है दैट इज योर बेसिक मीडियम. सो व्हाट इज हैपनिंग इट ओवर हियर? your AG is going to get separated off and you are going to get the carboxylate ion मिलेगा, वाटर मिलेगा, एमोनिया मिलेगा और दो सिल्वर के पार्टिकल्स मिलेंगे. सो ये जो सिल्वर के पार्टिकल्स सेपरेट हो रहे हैं इसकी वजह से मिरर फॉर्म होगा एंड वी कॉल इट एज अ मिरर टेस्ट ऑल्सो, सिल्वर मिरर टेस्ट. सो यू आर एबल टू सी द रिएक्शन. RCHO plus your Tollens reagent is able to give you carboxylate ion, 2 moles of Ag, 2 moles of water and 4 moles of ammonia. This test is not given by ketone. Ketone ये टेस्ट नहीं देता है. ठीक है, ये हमने टॉलरेंस देखा. फिर एक होता है फेलिन टेस्ट, फेलिन सॉल्यूशन A एंड फेलिन सॉल्यूशन B. ये भी पूछा गया है फेलिन सॉल्यूशन A क्या है और B क्या है. A is aqueous CuSO4 and what is B? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. सोडियम पोटेशियम टार्टरेट. डियर स्टूडेंट, तो आपका जो है कॉपर ब्लू कलर का होता है, तो RCHO प्लस कॉपर प्लस OH माइनस आयन इज एबल टू गिव यू Cu2O, दैट इज रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट. डियर स्टूडेंट, यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन एंड इट विल गिव यू द क्लियर आइडिया ऑल्सो. बेंडिक सॉल्यूशन, ये एक और सॉल्यूशन होता है फॉर डिटरमाइनिंग द
aldehyde and ketones. Okay, so Bendick solution, compounds, complex compounds, alkaline solution, cuprate ion will be formed with over there, and you will be this test is only given by the aldehyde. So Bendick भी एक टेस्ट होता है जो आपका पर्टिकुलर क्यूप्रेट आयन से फॉर्म होता है, दिस इज ओनली गिवन बाय दी aldehyde. This is what you have to remember. So आपके 3 टेस्ट हो गए, टॉलेंस टेस्ट हुआ, फेलिन टेस्ट हुआ और बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट हुआ. ये बेंडिक वन शायद आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पज, सो यू नीड टू नो इट. ठीक है, नाउ ये तो हमने एल्डिहाइड के टेस्ट देख लिए. सो व्हाट अबाउट द कीटोन्स, कीटोन्स कैसे टेस्ट देगा? सो कीटोन्स के लिए जो हम फॉर्म करने वाले हैं दैट इज नोन एज iodoform. We are going to see with the reaction of the ketones. Ketones के लिए अलग टेस्ट होते हैं, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है. Ketones are able to give the oxidation reaction under the vigorous condition and at the high temperature. So you have to remember that the reagent should be used differently over here. ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कीटोन का जो हम टेस्ट देखेंगे दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट. डियर स्टूडेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. So test for the ketone iodoform gives yellow color precipitate due to the methyl iodide. This test is only given by methyl ketone. Methyl ketone का मतलब क्या? कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे कंपल्सरी मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. डियर स्टूडेंट, अच्छा ये एल्डिहाइड में भी पॉसिबल है बट ओनली विथ वन एल्डिहाइड. कौन सा एल्डिहाइड? एसिटाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड में ही एक साइड पे CH3 लगा होगा. उसके अलावा जितने भी आप एल्डिहाइड देखोगे उसमें CH2 के बाद चेन आगे बढ़ेगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आयोडोफॉर्म, अगर ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर आयोडोफॉर्म कौन सा एल्डिहाइड देता है, there is only one aldehyde which gives this test and that is acetaldehyde. Otherwise ketones are also able to give, and ketones में भी वो कौन से कीटोन देंगे जिसके साथ कार्बोनिल के साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, वो ही. बाकी के जितने भी है वो ये टेस्ट नहीं दे सकते हैं. ओके, द रिएक्शन इज शोन वेरी क्लियरली ओवर हियर and which is coming very soon with your next slide in this particular video, that shows that acetaldehyde plus iodine in NaOH solution is able to give you Ci3CHO, that is giving you the iodoform. अब मतलब आपके जितने भी हाइड्रोजन थे वो सारे रिप्लेस हो गए. किससे रिप्लेस हो गए? आयोडीन से रिप्लेस हो गए. सो यू आर गेटिंग द आयोडोफॉर्म. ओके, देन Ci3CHO NaOH is able to give you CHI3, that is known as your iodoform and sodium formate. This is only for the acetaldehyde. Ketones में भी क्या होगा? Ketones में से very clearly I have shown you that Na कहाँ जाता है और H कहाँ चला जाता है. Very clearly the reaction is shown over here which you can write down and you can say that this particular is given by the aldehydes and ketones. ठीक है. Also नीचे one more एक reaction है, sodium hypohalite. This is also NaOX. NaOX is also giving you the reaction and forming the particular halogenated compound. So this is for the detection. ये detection के लिए use होता है, which you can note down. Dear student, next to this we are going to do with the very important reactions. इसके बाद जो reactions करने वाले हैं वो exam में most probably पूछते ही है. That's a common question asked over there in the exam. That is about, we are going to do about the aldol condensation and cross aldol condensation. Those are very important. आप चाहे तो भी उसको skip नहीं कर सकते हैं because directly, indirectly aldol condensation and cross aldol condensation is asked in the exam, which we are going to do in our next video.